guys, hello everyone. कैसे हैं आप सब? I am back after a long time, and this time I'll try to be more consistent in uploading my videos. So, without any further delay, let's start with our today's topic. And the topic for today is tissues, which is in class ninth textbook. It is the second chapter of biology, and chapter number 6 according to NCERT. So, let's begin. So, after reading the name of the chapter, tissue, you might be thinking, what is tissue? Let me explain you. Tissue is cluster of cells. Now, what is cluster of cells? It means, suppose a five group of friends are standing. Okay. If they are standing individually, they are known as individual are known as cells. But if they come and combine together in a group, they will be known as tissue. Similarly, when different cells in our body combine, they form tissues. There are two types of tissues, plant tissue and animal tissue. Plant tissue are further of two types, meristematic and permanent. Now you might be thinking, animal tissue are of four types? Yeah, you are absolutely right. There are four types, muscular, nervous, connective, and epithelial. We will be studying one by one about all of them. So let's begin. First, we'll be studying about plant tissue. This flowchart tells you about all the plant tissue. As I told you, there are two types of plant tissue, meristematic and permanent. Meristematic tissues are of three types, apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. And permanent tissue are of two types, simple permanent, complex permanent. Simple permanent are of further three types, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And, and complex permanent, xylem and phloem. First of all, let me explain you what is meristematic tissue. Meristematic tissue are the tissue which occurs at specific regions which have capacity to divide. The regions which have capacity to divide, only on that regions meristematic tissues are present. For example, root tips, shoot tips. They also have dense cytoplasm and prominent nuclei. They consist of intercellular spaces between them. Here is the longitudinal section of shoot apex showing location of meristems and young leaves. Apical meristem, this part. This one is intercalary meristem and this one is lateral meristem. I'll be teaching you about all the three types of meristems, apical, intercalary and lateral. So, what is apical meristem? Apical meristem is that type of meristematic tissue which is present on growing tips and increased length. जो ये एपिकल मेरिस्टम है वो ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, हेल्प करता है लेंथ को इंक्रीज करने में. अब आता है लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? ये जो होता है ये लेटरली प्रेजेंट होता है और ये गर्थ इंक्रीज करता है, मतलब चौड़ाई इंक्रीज करता है, थिकनेस इंक्रीज करता है प्लांट की. इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? ये बेस पे प्रेजेंट होता है लीव्स के और इंटरनोड्स पे भी प्रेजेंट होता है और ग्रोथ ऑफ लीव्स और स्टेम्स में ये हेल्प करता है. तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया. वो तीन टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है और ये लेंथ इंक्रीज करता है प्लांट की. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है लीव्स और इंटरनोड्स के और ये लीव्स और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है. थर्ड आता है लेटरल मेरिस्टम. वो किसमें? वो लेटरली प्रेजेंट होता है और गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है प्लांट्स की. नाउ लेट्स कम टू परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं. जब जो सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता और वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करने लग जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके, तो वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं.
अब एक टर्म आती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो प्रोसेस जो शेप, साइज और फंक्शन ले लेता है, जब कोई टिश्यू कोई फंक्शन, साइज और शेप ले लेता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की वजह से ही अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, अब हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, वो होता है एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये अगर एपिडर्मिस है, तो उसके नीचे जो सेल्स की लेयर बनेगी, वो जनरली जो होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे अगर हमें दिखाया होगा, ये हमारा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे ये आपको हाइपोडर्मिस दिख रहा है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है, इसे ही हम बोल देंगे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की लेयर्स हैं। ये वाली लेयर्स जो है ये सिंपल परमानेंट की है, मतलब इनर वाली। जस्ट अ मिनट। ये वाली जो लेयर्स हैं, ये सब हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यूज की लेयर्स हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स होते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा को हम कहते हैं पैकिंग टिश्यूज। ओके, पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं हम? पैकिंग टिश्यूज। ये जो होते हैं कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होते हैं और पिच ऑफ स्टेम और रूट्स की। ये पैकिंग टिश्यूज होते हैं और ये कॉर्टेक्स और पिच ऑफ रूट्स और स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो होते हैं ये फूड स्टोरेज की तरह काम करते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं ये वाले टिश्यूज अपने अंदर। टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू which performs photosynthesis are called क्लोरेन्काइमा। अब इसी में क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ये आपकी आती है इंपॉर्टेंट टर्म कि क्लोरेन्काइमा क्या होता है। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? जब जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो हम उसे कह देते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट्स में जो लार्ज एयर कैविटीज होती हैं पेरेन्काइमा की, वो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती है, उन्हें तैरने में हेल्प करती है। इस टाइप के पेरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। अब आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा वर्ड से मतलब निकालने की कोशिश करो। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा में एयर आ रहा है, तो मतलब एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट्स में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, जो उन्हें वाटर पे फ्लोट करने में हेल्प करती है। ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यूज को हम कहते हैं एरेन्काइमा। हमने अब तक क्या पढ़ा? टिश्यूज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्लांट और एनिमल। प्लांट टिश्यू फर्दर दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने पढ़ा पेरेन्काइमा के बारे में अभी तक। पेरेन्काइमा में जो हमें दे रखे हैं फर्दर दो टर्म्स दे रखे हैं। आप इसको टाइप्स की तरह मत पढ़ो, सिर्फ दो टर्म्स है, इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और वो पढ़ लेना। कौन कौन सी है? क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा नहीं है, क्लोरेन्काइमा है। क्योंकि जो कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा सिंपल परमानेंट का पार्ट है। अब हम कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक बार ये डायग्राम देखिए। ये आपको दिख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। ये जो है ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे आप देखो साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस है, मिडल लैमेला, ये है पूरा हमारा मिडल लैमेला, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, और ये एम्प्टी स्पेसेस इन्हें हम कहते हैं वैक्यूल। और इनके बीच में जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था, ये है इंटरसेल्युलर स्पेस। और ये हमारे होते हैं ये प्राइमरी सेल्स। ये था ट्रांसवर्स सेक्शन, ये था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना आ सकता है, तो एक बार इसे थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है? दे आर जनरली फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ मिडरिप्स।
ये जो होते हैं ये लीफ के स्टॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे, मिड रिब्स में। लीफ की जो मिड रिब होती है ना, जैसे ये हमारी लीफ है, ठीक है, इसमें मिडल में ये है हमारी मिड रिब, ठीक है, इसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के नीचे। इसमें जो एपिडर्मिस होगा उसके नीचे लीफ के मिड रिब्स में प्रेजेंट होती है ये हमारे कॉलन कायमा। अब कॉलन कायमा की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉलन कायमा की। इसके जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और थिक होते हैं कॉर्नर्स से। अब जो हमारा कॉलन कायमा होता है उसके सेल्स इरेगुलर थिक होते हैं, कहीं पे ज्यादा थिक हो गया, फिर कम थिक, फिर ज्यादा, फिर कम, इरेगुलर थिकनेस होती है इसकी। और ये जो होता है ये कॉर्नर्स पे होती है। वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इसमें लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। अब एक बार डायग्राम पे ध्यान दो। ये जो है वॉल थिकनिंग्स है, आपको दिख रही होंगी ये वाली, ये सारी वॉल थिकनिंग्स है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस, और ये खाली स्पेस आपको पता है ये वैक्यूल, और ये हमारी सेल वॉल। अब नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू है वो है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है स्टेम्स और लीव्स में, और जो हार्ड कवरिंग्स होती है सीड्स और नट्स की। Sclerenchyma is present in stems and leaves and in the hard coverings of seeds and nuts. ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये डेड सेल्स होते हैं, ये लिविंग नहीं होते, ये डेड होते हैं। सेल वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। अब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाई व्हाई आर सेल वॉल्स थिकन इन स्क्लेरेंकाइमा। अब सेल वॉल्स होती है वो थिकन क्यों होती है, लिग्निन की वजह से। तो आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इसमें बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। अब देखो हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आया कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फिर आया स्क्लेरेनकाइमा, इसमें बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। ये है सिंपल पिट पेयर। ये ट्रांसफर सेक्शन में हम देखेंगे, ये वाला जो है ये सिंपल पिट पेयर है। ये जो है लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, लिग्निफाइड मतलब इसमें लिग्निन प्रेजेंट है। ये नैरो ल्यूमेन, ये ल्यूमेन कैविटी है। और इनमें क्या डिफरेंस है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्क्लेरेंकाइमा का। एक बार आप जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले एक बार इन डायग्राम्स को जरूर देख लेना, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की। अब एक आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये एक पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको बता रखा है जो प्लांट्स में जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा टिश्यू है। तो वो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस, ओके, एंड कॉर्क। अब एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स नियर स्टोमेटा व्हिच आर टाइनी पोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं लीव्स पे, लीव्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा के पास होते हैं, इनके अंदर जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब सबसे बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात आप सबको पता है, ठीक है। इस केस में जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो एपिडर्मिस जो एपिडर्मिस होता है उनका, वो थिक वैक्स कोटिंग की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिन। थिक वैक्स कोटिंग किसकी होती है, क्यूटिन की। टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, उसमें वाटर लॉस कम करने के लिए उनके एपिडर्मिस में थिक वैक्स कोटिंग होती है क्यूटिन की, ठीक है। ये क्यों होती है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि why is thick wax coating of cutin present in desert plants। तो आप लिखेंगे to prevent the water loss। क्या लिखेंगे, prevent the water loss, ठीक है। सबसे पहला हमारा था एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव टिश्यू था। अब हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क। कॉर्क जो होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है और उसके अंदर बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं सुब्रिन। क्या कहते हैं उस केमिकल को हम, सुब्रिन। A chemical called subrin is present which makes them impervious to water। ठीक है, एक केमिकल होता है जिसे हम सुब्रिन कहते हैं, वो impervious बनाता है वाटर और गैसेस, impervious टू वाटर और गैसेस से,
वो उसको प्लांट को इम्परवियस बनाता है वाटर और गैसेस से। कौन बनाता है? सुब्रिन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज इम्परवियस? इम्परवियस होता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता वाटर और गैसेस का। आपने देखा होगा ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बाहर से जो ब्राउन वाला होता है ट्री ट्रंक वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसी को हम कहते हैं कॉर्क। और वो जो कॉर्क होता है वो सुब्रिन से बना होता है, जो उसे इम्परवियस बनाती है, मतलब उस पे वाटर और गैसेस का कोई असर नहीं पड़ता। अब इसके बाद लेट अस स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ लिया। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, मैं आपको बड़े ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ जैसे मैंने याद किया था। मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी जाइलम और फ्लोएम। तो देखो, फ्लोएम में क्या आ रहा है? फ। फ से क्या? फूड। फ से फ्लोएम, फ से फूड, मतलब फ्लोएम खाना ट्रांसफर करता है, फूड ट्रांसफर करता है। अब दूसरा ऑब्वियसली वाटर ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करता है। एक अगर फूड ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करता है तो दूसरा वाटर करेगा। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। जाइलम क्या होता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देख लिया क्या ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स। मेनली दे आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। उनके जाइलम के अंदर क्या क्या होता है? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। बोलो मेरे साथ, क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब ट्रैकीड्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये डेड होते हैं। दे आर डेड लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स मतलब इनका चिपचिपा सा एंड होता है। टेपरिंग का मतलब टेप जैसे चिपचिप होती है ना, वैसे ये होते हैं चिपचिप एंड्स वाले। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा वेसल्स। क्या होता है? वेसल्स होते हैं, अब वेसल से आपको समझ आ रहा होगा वेसल हम किसे कहते हैं घर में? बर्तन को। बर्तन में क्या होता है? हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब वेसल यहाँ पे क्या होता है? ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म करते हैं रोज ऑफ सेल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स रोज ऑफ सेल्स। दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड। ऑल्सो दे आर डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स। यहाँ पे भी आ गई वही बात, लिग्निफाइड वॉल्स। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं ये एंड टू एंड प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं जिनकी जो वॉल्स होती है वो लिग्निफाइड होती है। हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, ये वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जाइलम पेरेन्काइमा। अब जाइलम के अंदर सिर्फ एक ये ऐसा टिश्यू है जो लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। ट्रेकीज, वेसल, जाइलम फाइबर्स तीनों डेड होते हैं, खाली जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होगा। अब आपका एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, which tissue in the xylem is living? और फोर ऑप्शन दे देगा, ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन वॉल्स होती है। ये फूड स्टोर में हेल्प करते हैं और हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो, अब आप कहोगे आपने बताया था कि फ्लोएम जो होता है वो फूड कंडक्ट करता है। ये कह रहे फूड कंडक्ट नहीं करता, ये फूड को स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। कंडक्शन ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है जाइलम फाइबर्स। अब जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? ये भी डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, लेकिन जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन ऑफ जाइलम। ये जो भी फंक्शन होते हैं जाइलम के उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको समझ आ गया क्या होता है जाइलम? नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, अदरवाइज वीडियो जो होगी वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमने जाइलम में क्या पढ़ा? जाइलम वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके अंदर चार तरह के टिश्यू होते हैं। चार, दे आर कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर दे कंसिस्ट ऑफ? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। नाउ लेट अस कम ऑन टू जाइलम, सॉरी फ्लोएम। ओके, अब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे।
दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दे आर बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ काम कर सकते हैं। लेकिन जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही तरह काम कर सकता है, मतलब नीचे से ऊपर। लेकिन ये बाय डायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। अब इसके अंदर ये 5 तरह के सेल्स होते हैं। जाइलम में कौन कौन से थे? 4 तरह के थे। बताओ कौन कौन से, फटाफट नीचे कमेंट में लिखो। 1, 2, 3। कौन कौन से? सबसे पहला ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, फोर्थ जाइलम फाइबर्स। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में कितने होते हैं? 5 तरह के। कौन कौन से? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें भी होते हैं पेरेन्काइमा और फाइबर्स। उसमें जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सीव ट्यूब्स क्या होती है? Tubular cells which with perforated walls have thin layers of cytoplasm। ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और परफोरेटेड वॉल्स होती है इनकी। इनकी जो थिन लेयर्स होती है, साइटोप्लाज्म की जो होती है वो थिन लेयर्स होती है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा कौन 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 सा था? सीव सेल्स। सीव सेल्स क्या करते हैं? वो जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और इनकी भी थिन सेल वॉल, इनकी थिन सेल वॉल होती है, लेकिन ट्यूब्स में थिन साइटोप्लाज्म होता है। They are elongated and have thin cell walls. They have cytoplasm but do not have nucleus and other organs। इसके पास साइटोप्लाज्म होता है लेकिन और साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस और बाकी के ऑर्गन्स नहीं होते। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो सीव सेल्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, लेकिन इनमें परफोरेशन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। लेटरल, लेटरल मतलब साइडवेज होता है। स्टोरेज इन लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ये हमें लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, मतलब साइडवेज से जो फूड जाता है उसमें ये हेल्प करते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है फ्लोएम फाइबर्स। दे आर द ओनली डेड सेल्स विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम फाइबर्स सिर्फ एक ऐसे डेड सेल्स हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है। अब इसमें से आपका क्या एमसीक्यू बन सकता है? Which type of cells provides mechanical support to the plant? ओके, आपको ऑप्शंस पता है क्या देगा कंफ्यूज करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन जाइलम फाइबर्स। आप फाइलम देखो, आप फाइबर्स देखोगे, टिक, और आपका आंसर गलत। तो क्या क्या होता है? जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स। ये आगे 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो खत्म हो गया। एनिमल टिश्यू जो है वो सेकंड पार्ट में मैं लाऊंगी आपके लिए, और सेकंड पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी, वरना वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ी बोर सा होने लगेगा आपको। इतने आप जो है वो रिवाइज करना, जो मैंने आज पढ़ाया आपको प्लांट टिश्यू के बारे में। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू as soon as possible. So that's all for my today's video. Meet you again in my next video. Till then, take care and bye bye.